ایک اختیار صاحب آپ نے جانا نہیں. دیکھیں نہیں آپ نے جانا نہیں ہے. کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیے گئے ہیں, یہ الزام آپ کس بنیاد پہ لگا سکتے ہیں؟ میں ماڈل ٹاؤن میں ان لوگوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں ماری ہیں, تو پلیز میرے بھائی تو بالکل بولے بھی نہ. عمران خان کو جب بھی کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کیوں آتا ہے؟ کہ عمران خان کو نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنا سیکھنا ہوگا. یہ رانا ثناء اللہ مرکز کا وزیر داخلہ ہے, اگر اس کی جگہ میں وزیر داخلہ ہوتا نا تو ابھی تک ایک کو ٹھیک کرتا, کوئی گھر سے نکل کے دکھاتا. سر ماشاء اللہ میرے بھائی ہیں اور بہت اچھے بھائی ہیں, لیکن ان کی لینگویج آپ نے دیکھ لی. یہ کوچہ رسالدار یہاں سے کوئی 5 منٹ کے فاصلے پر ہے, 150 لوگ اس میں بم دھماکے میں اڑ گئے تھے. عمران خان آیا ہے ان کی پوچھنے کے لیے؟ اگر میں نے آپ کے وزیر دفاع کو بند کیا ہے, آئی ایم دا ون, کہ میں نے آپ کے وزیر دفاع پرویز خٹک کو جو سٹنگ ایم این اے بھی تھا اور فیڈرل منسٹر تھا, اس کو گھر میں بند کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. شدید گرمی ہے, سیاسی درجہ حرارت بھی بہت بڑھ چکا ہے. 25 مئی کو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. وفاقی حکومت کس طریقے سے لانگ مارچ سے نمٹے گی, تحریک انصاف کی اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں, آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے احاطے میں صوبائی اسمبلی کی رکن, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق عائشہ بانو, اور اختیار ولی صاحب بھی موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. پہلے عائشہ بانو سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کی لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں کیا ہیں, کیا کیا ہتھیار لے کے جا رہے ہیں اور کیا کیا تیاریاں ہیں, کیونکہ جب لوگ اس طرح کے احتجاج میں جاتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ پانی, نمک اور یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارا تو پیسفل پروٹیسٹ ہے, تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک اپوزیشن پی ڈی ایم جلسے جلوس کرتی رہیں. کہیں ہم لوگ حکومت میں تھے, کبھی کسی کے اوپر کوئی شیلنگ نہیں ہوئی, کسی کے اوپر کوئی ہماری طرف سے بد نظامی نہیں ہوئی. ہم لوگوں نے ان کو ہر جگہ پہ جلسے جلوس کرنے دیے ہیں, نہ کہ لوگوں کے کنٹینرز ہم لوگوں نے اڑائے ہیں جس طرح انہوں نے کیا سیالکوٹ میں کیا, نہ ہم لوگوں نے کسی کے اوپر شیلنگ کی ہے. اب بھی خطرہ ہے, اب بھی خدشہ ہے کوئی؟ دیکھیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے, اب ان کو ہم ڈکٹیشن تو نہیں دے سکتے, لیکن ہم لوگوں نے اپنے کارکنانوں کو اور اپنے ورکرز کو یہ اسٹرکٹلی گائیڈ کیا ہوا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ ہے. اور جس طرح پہلے بھی ہمارے دھرنے اور جلسے ہوتے رہے ہیں, ہمارے اس میں کوئی بد نظامی کی یا کوئی اس طرح کی ایگریسونیس جو ہے وہ ہماری طرف سے کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں اور نہ ہم دیں گے. اور خاص طور پہ اگر اپنے خان صاحب کا بھی دیکھا ہے تو وہ جب بھی اعلان کرتے ہیں وہ بار بار اپنے ورکرز کو یہی کہتے ہیں کہ اٹس اے پیسفل پروٹیسٹ. یہ ان کی حکومت کو بتانے کے لیے بھی ہے اور یہ ہمارے اپنے ورکرز کو بھی بتانے کے لیے ہے. لیکن اگر ان کو پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہضم ہوتا تو وہ الگ بات ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے سیالکوٹ میں کیا کہ جا کے تو ہمارے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, کنٹینرز کو اٹھا کے پھینک دیے, اور وہ جو ایک کارڈ, ریلیجن کا کارڈ وہ یوز کر کے تو ہراس کرنا شروع کر دیا. تو وہ اب ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن ہم لوگ پیسفل پروٹیسٹ پہ جا رہے ہیں اور ہمیں جو پریپریشن کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں. وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں تو خیر ایم پی ہے اختیار ولی صاحب, ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جی کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیے گئے ہیں, یہ الزام آپ کس بنیاد پہ لگا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ پہلے بھی پیسفل احتجاج کے نام پر آئے تھے اسلام آباد میں, پھر انہوں نے وہاں پہ قبریں بھی کھودی تھی, وہ آپ کو یاد ہوگا. وہ ایس ایس پی اسلام آباد کو پکڑ کے اس کو کس طرح مارا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا. کتنے لوگوں کے سر انہوں نے پھاڑے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا. کتنا انہوں نے معیشت کو نقصان پہنچانا تھا آپ کو یاد ہوگا. یہ قوم بھی گواہ ہے. لیکن میں حیران یہ ہوں کہ عمران خان کو جب بھی کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کیوں آتا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے وسائل اور یہاں کی حکومت اور یہاں کا خزانہ یہ ان کی گندی سیاست کے لیے ہے؟ اچھا, آپ جب حکومت میں تھے تو آپ کو جب ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرائیں تو آپ کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ لیکن جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ, الیکشن ہوں گے, لیکن وہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہوں گے, وہ ہماری مرضی پہ ہوں گے. اب ہم حکومت میں ہیں, ہم آپ کا راستہ بھی روکیں گے. اور اب یاد رکھیں کہ اب چودھری نثار جو ہے وہ وزیر داخلہ نہیں ہے. راستہ روکیں گے آپ؟ راستہ نہیں, ہم ان کو جہاں پہ ہوں گے
थोड़ी सी हमें इजाज़त बड़ों के लेनी है, जहाँ पे होंगे इंशाल्लाह ये वहाँ से निकलेंगे भी नहीं, हम पहले इनको देख चुके हैं। नहीं, अगर इनका एहतजाज या इनका लॉन्ग मार्च पुरअमन है तो आप कैसे रोकेंगे? होगा पुरअमन कैसे होगा? जो बंदा कहता है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं तो कोई वज़ीर आज़म नहीं, मेरी हुकूमत नहीं तो किसी की हुकूमत नहीं, वो तो पागल है। उसके तो दिमाग पे हुकूमत सवार है कि मैंने हर हालत में पावर लेनी है। वो तो उसका तो आइडियल या मुसोलिनी है या तो फिर हिटलर है, वो तो खून का प्यासा है। और हमारी इत्तलात हैं, पीटीआई के अंदर के कुछ लोगों ने हमें बताया है कि इमरान खान ने कुछ मखसूस लोगों को ये टारगेट दिया है कि वो मुसल्लह होकर आएँ, और वो इस मार्च में जब वो देखें कि इनके मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे तो वो असले का इस्तेमाल करेंगे और फिर वावेला मचाकर वो गंद, वो सारी गलाजत ये हुकूमत के सर थोपने की कोशिश करेंगे। तो हम इनको इनके अज़ाइम में कामयाब होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, और इनको ये बता देंगे अब आपकी हुकूमत नहीं है, अभी आप अपोजिशन में हैं, आप अपने अपोजिशन का रोल अदा करें, अपनी मनमानी छोड़ें। वरना आज अगर इनकी ये एक बात मान ली गई कि इलेक्शन की तारीख़ आपकी मर्ज़ी की, तो कल बोलेगा कि मुझे इलेक्शन कमिश्नर भी मेरा बिठा दो, वो भी पीटीआई से हो, चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है तो वो भी मेरी मर्ज़ी का हो, और फिर निगरान भी इनकी मर्ज़ी का हो, फिर आर्मी चीफ़ भी इनकी मर्ज़ी का हो। इमरान खान को न्यूट्रल एम्पायर के साथ खेलना सीखना होगा। वो आज तक अपनी ज़िंदगी में शायद न्यूट्रल एम्पायर के साथ नहीं खेले हैं, हम उनको अभी सिखाएंगे कि न्यूट्रल के साथ किस तरह खेला जाता है। इख्तियार वली साहब की बातों से लग रहा है कि 25 को तो लॉन्ग मार्च है, ठीक है, 26 को आप क्या देख रही हैं? ये तो देखें, ये तो अभी पता लगेगा। लेकिन दूसरा ये है कि पीएमएलएन का आपने जिस तरह माशाल्लाह मेरे भाई हैं और बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज आपने देख ली, तो पीएमएलएन बेचारे हमेशा अपनी लैंग्वेज पे मार खा देते हैं। और मैं उनको हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर ये कहते हैं कि जी दूसरे पार्टी वाले और पीटीआई वाले, तो ना हम लोगों ने इनकी पार्टी को या इनकी लीडरशिप को कुछ पागल बोला है, क्योंकि इनकी लीडरशिप तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज़रा लैंग्वेज पे ज़रा एहतियात करें। दूसरा ये है कि इन्होंने सुना है और उन्होंने सुना है, हमने तो सुना नहीं है, हमने तो लोगों के केसेस देखे हैं और अवाम ने भी देखे हैं लोगों के केसेस, जो अरबों खरबों के केसेस हैं वो सुने नहीं हैं, वो हेयर से नहीं है, दे आर ऑन रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड पे एफआईए के रिकॉर्ड, उस वक्त बंदा भी पकड़ा गया जब इनके वो एफआईए के केसेस जो है था ना वो उड़ाने के और फाइल घुमाने के चक्कर में थे। तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये देखी हुई बातें हैं। और अब ये अपनी बातों से पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर ये कहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च में ये हुआ, अब आप मुझे बताएं कि जब आप खड़े हैं यहाँ पर, अभी अगर यहाँ पर आपके ऊपर कोई पथराव शुरू कर दे, शेलिंग शुरू कर दे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप क्या करेंगे? नहीं, अगर गोली भी है तो वो आप ही के लोगों ने गोलियाँ मारी हैं। मॉडल टाउन में इन लोगों ने निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियाँ मारी हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई तो बिल्कुल बोले भी ना, क्योंकि वो केसेस भी चल रहे हैं। तो हेयर से पे तो आप बिल्कुल भी यकीन ना करें, जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करें। जो मॉडल टाउन का है वो भी क्या पीटीआई की गलती है? वो पीटीआई के वर्कर नहीं थे, वो बेचारे मोहताज, नाबीना और डिसेबल लोग थे जिनके ऊपर उन्होंने फायरिंग की थी, और वो मर्डर के केसेस इनके ऊपर हैं। लोगों के ऊपर ड्रग के केसेस हैं, लोगों के ऊपर मर्डर के केसेस हैं। नहीं, आप मेरी बात पूरी करने दें। बात यह है कि ये मैंने किसी वर्कर से, किसी से सुना, ये सुनी सुनाई बातें जो है ना, सुनी सुनाई बातों पे हम नहीं चलते हैं। और ना पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि वो अब सुनी सुनाई बातों पे चलेगी। उनको सारी रियलिटी पता है। मैं नहीं तो कोई नहीं, हाँ मैं नहीं तो कोई नहीं की बात ये करते ही तो ज़बानी इनकी बातें हैं। भाई आप लोगों की जो लीडरशिप बैठी है वो तो बैठी इसी चल पे आई किस लिए थी, आप मुझे बताएं। इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस लिए लेकर आए थे? मैं आप मीडिया के जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं उनसे मैं पूछती हूँ, ये लोग आए थे कि हम मईशत को संभालेंगे, इन्होंने संभाल लिया। आप इनसे प्लीज़, मेरे भाई खड़े, आप इनसे पूछें। नहीं, अब मैं बताता हूँ, ये तो पिछली हुकूमत ने जीडीपी ग्रोथ, जहाँ पे इन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड इनके इकोनॉमिस्ट ने कह दिया है कि जी मुझे हरास कर रहे थे, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया कि आप जीडीपी ग्रोथ को कम करें, ताकि हम जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हम कहेंगे कि जी वी हैव सस्टेन्ड दैट जीडीपी का ग्रोथ। तो बात यह है कि यहाँ पर अगर हम असेंबली में बैठे हुए हैं ना, और हम लोगों को मीडिया, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर कोई इतना अब गार में रहने वाला नहीं है कि जहाँ पर टीवी नहीं है और जहाँ पर रेडियो नहीं है और यहाँ पर वो नहीं है। आजकल आप कोई मुंह से बात निकालें, वो बहुत लोगों को पहुँचती है। अच्छा, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं, तो कई दिनों से वो पेशावर में मौजूद हैं,
मतलब एक सवाल उठ रहा है सवाल में चेयरमैन है, क्यों ना कि हो? हाँ, हम चाहते हैं हमारी पार्टी चेयरमैन है हमारे साथ हो, हमारी मर्जी। क्यों हम इनको डिक्टेशन देते हैं कि आपके भाग के जो आपका एक भगोड़ा बैठा हुआ है मुल्क में, यहाँ पे केसेस से भाग के बैठा हुआ है, तो पहले ये जवाब देना क्यों लंदन में बैठे हुए हैं? इमरान खान साहब के ऊपर कौन सा केस है? उनकी जहाँ से मर्जी आज़ाद पाकिस्तानी है, जहाँ से वो जाना चाहते हैं। आपके लोग तो अरबों खरबों के पैसे पब्लिक के खा के उसके बाद जाके तो भगोड़ा होके प्लेटलेट्स का फेक वो करके और वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो जवाब देना वो उधर क्यों बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं आते? जी इख्तियार साहब, नवाज शरीफ के बारे में जिक्र हो रहा है कि वो क्यों आ नहीं रहे। मैं अपनी बहन आयशा मेरी प्यारी बहन है, मैं ज़रा इनको रिस्पॉन्ड कर लूँ। सबसे पहले तो ये लैंग्वेज की, मुझे कह रहे हैं कि लैंग्वेज का ख्याल रखें। इमरान खान के बारे में, उस शख्स के बारे में, आप तो एक ख़ातून हैं और उसने मरियम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जिस ज़बान का इस्तेमाल किया, तमाम माँओं बहनों का जिनकी हया हो, जिनकी इज़्ज़त हो, जो अपने घरों में बैठी हैं, उन सब को तकलीफ़ पहुंची है, तो बहैसियत एक ख़ातून आपको भी उसको कंडेम करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस कौम के नौजवानों को इतना बदतहज़ीब बना दिया है, इतना बदअखलाक बना दिया है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। जहाँ पे ये बात करते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा उनका घर है, यही उनका घर है, तो बनी गाला फिर किसका घर है? तो ये उस्मान बुज़दार फिर किसका, जो पंजाब का किला था वो किसका घर था? और वहाँ से उन्होंने सिर्फ पैसे निकालने थे। यहाँ पर तो 9 साल से आपकी हुकूमत है। मैं ये कूचा रिसालदार यहाँ से कोई 5 मिनट के फासले पर है, 150 लोग उसमें बम धमाके में उड़ गए थे। इमरान खान आया है उनकी पूछने के लिए? यहाँ पे 150 लोग बच्चों का APS में कत्लेआम हुआ था, इमरान खान यहाँ का हाकिम था, उसको तौफीक हुई थी यहाँ पे आने के लिए। यहाँ के इस सूबे के जो लोग हैं, जो आम पख्तून लोग हैं, नहीं, इमरान खान साहब तो डरना ख़त्म करके आए थे मेरा ख्याल है बेचारा। मैं इस पे जरा जवाब करना देना चाहूंगी क्योंकि बात मुझे फिर भूल जाएगी। आप छोड़ दें इनकी वालिदा जरा मरियम let साहिबा me- की let me- वालिदा की let me डेथ मुझे हुई, वो अपनी माँ के अफसोस पे नहीं आए आप और फिर ये कर हमारी लें। लीडरशिप से फिर पूछ आप रहे हैं। कंटिन्यू करें, मुझे कंप्लीट कर लेने। तो बात सारी ये है कि जिस बंदे की ना खुद यहाँ औलाद रहती हो, ना उसके यहाँ पे कोई वो हो एसेट्स हो, ना यहाँ उसकी कोई स्टेक्स हो, तो यहाँ पे उसका क्या है? वो तो मैंने आपको बताया वो हिटलर का और मुसोलिनी का वो पैरोकार है। खून खराबा, गंदगी, सैनिटिज़म, वो तो इन चीज़ों का रसिया है और ऐसे महफिलों का वो शौकीन है। ऐसे बंदे को उसको आप इमाम बनाते हैं, उसको आप लीडर समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में तमाम सियासी जमातें जितनी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई है। तहरीक इंसाफ ना सियासी क़ुव्वत थी, ना सियासी नज़रिया था, ना सियासी जमात है। ये मुल्क में एक इंतशार, जिस तरह कोरोना की वबा और ये दूसरी कोई आई है, कौन सी वो पॉक्स है, मिंकी पॉक्स, ये उसी तरह की कोई वबा है, कोई इंतशार। और इसको ये मेरी बहन नाराज़ ना हो, ये राना सनाउल्लाह मरकज़ का वज़ीर दाखिला है, अगर उसकी जगह मैं वज़ीर दाखिला होता ना तो अभी तक एक को ठीक करता, कोई घर से निकल के दिखाता। कैसे ठीक करता? जमहूरियत किस के नाम तरीके पर इनको कम से कम तमीज़ सिखाता कि बात कैसे करते हैं, हुकूमत कैसे चलाते हैं। यहाँ पर तो आपकी हुकूमत है ना, यहाँ पे तो आपने हमें बंद किया हुआ है। में किसी यहाँ पीटीआई पे के तो- वर्कर को बंद करके ओ बैठा दे, बहन, मैं यहाँ मान पे तो जाऊंगी। आपने हमें बंद किया। अगर मैंने वो- आपके वजीर दिफा को बंद किया है। लाइए मैं बताता हूँ। इनके PMLN मैं के बताता किसी हूँ। खातून ने कंडेम किया मीडिया पे आके आपके कि वज़ीर मरियम दिफा नवाज को उसके घर में को बंद किया कि है। मरियम नवाज को वो- ये कहा है, वो- मरियम इनका जो नवाज वज़ीर को दिफा है- वो तो पॉलिटिक्स में भाई ओ बहन, जो एक ताज़े मज़िया खातून खलीफे ना। इख्तियार साहब आपने जाना नहीं, देखें, नहीं आपने जाना नहीं है ये। हाँ हाँ, भाग रहा हूँ। मैंने आगे भी जाना है, आप मेरे और बड़े काम है, लेकिन ये कह रहे हैं आपने किसी PTI के वर्कर को बंद करके दिखाएं। आई एम द वन कि मैंने आपके वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को, जो सिटिंग MNA भी था और फेडरल मिनिस्टर था, उसको घर में बंद किया है। वरना उसका बयान रिकॉर्ड पर है कि अगर मुझसे इख्तियार वली इलेक्शन जीत अगर गया, पुरअमन तरीके से होता है तो जीत जाने गया दें, तो मतलब मैं मानकी शरीफ दोबारा नहीं आऊँगा। फिर भी आता है, ना कोई हया है, ना कोई गैरत है, ना कोई शर्म है। यहाँ पे एक और MPA साहब हैं, इस असम्बली में भी मैं मिला हूँ उसको, कहता था अगर तुम इलेक्शन जीत गए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये हालात है इनके। इख्तियार साहब आप जा रहे हैं तो ये देखें, ये बात सुन लें मेरा। अनएथिकल है। नहीं आपके इख्तियार साहब जाना नहीं है। जवाब तो इनकी हिम्मत है नहीं। देखें जवाब सुनने की इन बेचारों के पास वो हिम्मत ही नहीं है। बाप माँ मर जाती है भाई, वो पाकिस्तान नहीं आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी फलाने जगह पे धमाका हुआ, वो खान साहब आए भी थे और बाद में आए थे और ज़रूर उनको अफसोस के लिए गए थे। ये तो अपनी माँ
बेचारी के अफसोस पे नहीं आ सकते कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, तो ये कौन सी मोहब्बत है इनकी भाई। दूसरा ये कह रहे हैं कि जी औरत कार्ड, बात ये है कि आपने मरियम नवाज़ के जितने भी इंटरव्यूज़ हैं आप निकालें। हम लोगों ने कभी किसी की माँ बहन, किसी के घर में जो बेटी बैठी हुई है, किसी की माँ बहन, मरियम तो डायरेक्ट बैठ के तो कन्फ्रंट कर रही होती है टीवी मीडिया पे, कभी खान साहब की मिसेस को कभी कुछ कह रही होती है, कभी कुछ कह रही होती है। अभी आपने इनकी लैंग्वेज देखी, ये PMLN के स्टैंडर्ड इन लोगों की कार्रवाई है। ये लोगों के साथ जब आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते तो ये गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आई एम सॉरी मेरे भाई हैं, लेकिन PMLN की सब लोगों की बहुत गंदी ज़बानें हैं। एक तासुर है कि इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले किया जा सकता है, या जो आपने बातें सुनी तैयारी भी है, ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत है, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कोई दूसरा तीसरा प्लान है आपके पास? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली है हमारे पास प्लान A भी है, B भी है, C भी है और D भी है। हम हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार। खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? सारे निकलेंगे, जितने भी PTI के वर्कर्स हैं, जो नॉट इवन PTI, जो पाकिस्तानी है और जो ये समझता है कि हम ये इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, जो बाहर से हमारे ऊपर तसल्लुत हो गई है और हमारे ऊपर एक इम्पोज हो गई है, अगर वो अपने आप को ट्रू पेट्रियाटिक और ट्रू पाकिस्तानी कहते हैं, उसमें आप और हम सब शामिल होते हैं, तो हम निकलेंगे। और अगर हमें थोड़ी सी भी गैरत होगी, थोड़ी सी भी गैरत अगर होगी किसी पाकिस्तानी में भी, तो वो कभी भी किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा और वो बाहर के लोगों की बात नहीं सुनेगा। तो मुझे बड़ी अफसोस होती है कि मेरे भाई अब आदि में अपनी बात करके, क्योंकि जवाब सुनने की इनकी हिम्मत थी नहीं, वो इसलिए भाग गए हैं। बड़ा मुतालबा आपका इलेक्शन का है, तो प्रेशर डेवलप करने के लिए कुछ इलेक्शन तो लोग कह रहे हैं कि सूबाई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को क्यों नहीं तहलील करते आपके इमरान खान साहब? जब तक वो कंप्लीट इलेक्शन का अनाउंस नहीं करते, हम यहाँ से नहीं वो रेजिग्नेशन देंगे। और जिस वक्त हमें खान साहब कहेंगे तब हम रेजिग्नेशंस देंगे, और वो अभी कहेंगे तो हम अभी दे देंगे रेजिग्नेशंस। हमारा पूरा प्लान 1A B C D पूरा रेडी है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस वक्त खान साहब हमें बोलेंगे, हम उनके हिसाब से उनकी देखिए लीडरशिप जब आपको डिसाइड करेगी, वो उनके अपने ये डिसीजन मेकिंग उनका है। जब पार्लिमानी कमेटी पूरी डिसाइड करेगी उसके बाद हम लोग को करेंगे। बाकी फ़ौज आती है, जो आती है वो भी हमारे भाई हैं। मैं तमाम जितने भी पुलिस के एहलकार हैं, पंजाब पुलिस के हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस को अगर वो देते हैं ये ड्यूटी, तो मुझे तो नहीं लगता कि आर्म फोर्सेस और या भी कोई एक सेंसिबल पुलिस वाला बग़ैर किसी नहत्ते शहरी के ऊपर जाके तो अटैक करेगा। आपने देखा था कि जब हमारे धरने के ऊपर उन्होंने शेलिंग की थी तो किसके साथ वेपन था? आप तो टीवी खुद मीडिया के रिपोर्टर हैं, किसी एक PTI वर्कर को आपने किसी असलहे के साथ देखा था? और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के सर फाड़े थे, अब अगर आप मुझे पीट रहे हैं तो मैं आपको भी धक्का दूंगी ना। ये तो नहीं होगा कि आप खड़े होंगे और आप मेरे ऊपर हमला करेंगे, अटैक करेंगे और मैं आपके सामने खड़ी रहूँगी। तो ये कि ये कहते हैं कि जी ये तो अपने मोहल्ले में किसी PTI के वर्कर को बंद करके दिखाएं, बाकी भी बहुत शुक्रिया। आयशा बानो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही थी और इख्तियार वली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे। 25 मई से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना है। हमारी दुआ है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब माशी इस्तेहकाम आएगा तो आम लोगों के जो मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तवानाई का बहरान है, लोड शेडिंग है, बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं, तो उसकी जानिब भी सियासी जमातों के कायदीन की तवज्जो जाए और हुकूमतों की तवज्जो जाए। इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कमेंट्स में भी, और अगर आपने आज तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।